Hello friends, welcome to UPSC Decoded and welcome back to the Hindu editorial analysis in just 15 minutes जहां पे कुछ ही मिनटों में हम करते हैं सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक डिस्कशन, एग्जाम रेलेवेंट आर्टिकल्स विदाउट एनी मार्केटिंग, विदाउट एनी प्रोपेगेंडा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज दीज इनिशिएटिव्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम करने वाले हैं। द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू इग्नोर बिकॉज इट इज अ हेवी क्रिटिसिज्म ऑफ द लीडर्स ऑफ दीज थ्री कंट्रीज यूएस, इंडिया एंड ब्राजील। Of course, this is not something we are going to do. The second one is ending encryption. तो ये वाला जो आर्टिकल है this is important, of course, important from the exam perspective, GS2 and power play to bring the digital ecosystem to heal. So essentially जो second और third articles हैं ये दोनों जो मैंने highlight किए हैं ये same है। ये वाला जो आर्टिकल है this is a mini version of this bigger article, exactly the same content. So let's check out what is the content about. What is the article about? So power play to bring the digital ecosystem to heal. So it is saying that it is a power play by the government of India to bring the digital ecosystem, जो social media platforms हैं उनको घुटने टिकाने का एक तरीका है गवर्नमेंट का, and this is why the government has brought out the IT rules. So it is saying that while the problems are there in the system मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक व्हाट्सएप वगैरह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इल कंसिडर्ड रेगुलेशन आप लेके आ जाओगे और इस तरीके से आप ज़बरदस्ती उनको बोलोगे कि हमारे जो रूल्स हैं उनको मानिए। So what the authors are saying is that the rules are against the very basis of what the Supreme Court has held in the KS Puttaswamy decision of 2017. Right to privacy violate हो रही है and as such the rules should not be there. So it has started with this particular section, Rule 42 of the IT Rules 2021, which imposes an obligation on significant social media intermediaries like WhatsApp providing a messaging function to ensure traceability of the originator of information. So this is actually very problematic. गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको ट्रेस करना पड़ेगा कि किस पर्सन ने उस मैसेज को ओरिजिनेट किया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट एक मॉर्फ वीडियो है जिसमें हिंदू मुस्लिम लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट दिखाए जा रहे हैं, राइट्स दिखाए जा रहे हैं, विच इज मॉर्फ्ड वीडियो लेट्स से, एंड इट इज स्प्रेड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप पे स्प्रेड कर रहा है, वायरल हो रहा है। सो द गवर्नमेंट वुड वांट कि व्हाट्सएप ट्रेस करके बताए कि किसने ये भड़काऊ जो इस तरीके के मॉर्फ वीडियो है वो पुटअप किया है वहां पे। सो व्हाट व्हाट्सएप इज सेइंग दैट इट इज लीडिंग टू वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ सिटीजन। ठीक है, ऐसे केसेस होंगे बट अल्टीमेटली वी विल हैव टू इंश्योर दैट वी आर doing surveillance over all the messages that are going on on WhatsApp, and you know that 99.9% of the citizens they are law abiding and as such हमको हर किसी को मॉनिटर करना पड़ेगा और उनकी जो प्राइवेसी होगी वो वायलेट होगी। उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट प्राइमरीली रिलाइज ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट राइट and that the traceability obligation is proportionate and sufficiently restricted. That privacy जो right है, right to privacy is also not absolute, just like the fundamental rights. एक बहुत फेमस केस है दोस्तों, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, केएस पट्टासामी जो केस है ऑफ 2017। यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लैंडमार्क दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट there are certain riders, there are certain exceptions, but exception के नाम पे गवर्नमेंट अब्यूज नहीं कर सकती because the restriction on the right to privacy must be necessary, proportionate, and there should be safeguard against abuse by the government. And the government is saying कि actually proportionate ही है and sufficient restrictions हैं, हम मतलब बिल्कुल last resort में use करेंगे उस चीज को। But the authors are saying that this is obviously not proportionate, this is not suitable, and it also says that कोई ऐसा independent oversight जो regulator ऐसा नहीं है जो वो decide करे कि ये जो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है, लेट्स से कोई किसी पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट व्हाट्सएप को जाती है, तो कौन डिसाइड करेगा कि वो जो रिक्वेस्ट है वो लेजिटिमेट है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बहाना बना के
गवर्नमेंट का पर्पस क्या हो कि जो गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म वाली वीडियोस हैं वो टेक डाउन करवाना चाह रही हो गवर्नमेंट वांट्स टू पनिश दोज पीपल that have originated that content related to criticism of the government. So this is exactly the argument they are making कि एक ऐसा independent oversight एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जो देखे और डिसाइड करे कि इस तरीके की रिक्वेस्ट लेजिटिमेट है भी कि नहीं है, बट ऐसा कोई प्रोविजन आईटी रूल्स में नहीं है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन दे आर रेजिंग ओवर हियर, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग दैट इट क्रिएट्स अ प्रिजम्पशन ऑफ क्रिमिनलिटी ओवर ऑल द सिटीजन्स. As I said, 99.9% of the citizens, they are law-abiding people. अगर आपके पास एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म है, आप सबको मॉनिटर कर रहे हो, एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं हो रहा, दैट मीन्स आप अपने सिटीजन्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे. यू डोंट ट्रस्ट योर सिटीजन्स. सो दिस इज अनदर आर्ग्यूमेंट दे आर मेकिंग, एंड देन दे आर ऑल्सो सेइंग दैट अदर मीन्स एग्जिस्ट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ओरिजिन है उसको ट्रेस करके सिर्फ वही तरीका है कि जो गिल्टी है उसको पनिश किया जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए. ये बोल रहे हैं कि देयर आर अदर वेज ऑल्सो, और तरीके भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस मेटा डेटा, देर आर अदर डिजिटल ट्रेल्स फ्रॉम इंटरमीडियरीज. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है, तो व्हाट्सएप यूज करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है. क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, लेट्स से प्रोफाइल पिक्चर है, सब इंफॉर्मेशन अबाउट यू, व्हाट्सएप स्टेटस है, लास्ट सीन है, तो और भी कई सारी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम द एनक्रिप्टेड डेटा दैट द गवर्नमेंट कैन रिक्वेस्ट these intermediaries to provide, and they would be happy to provide that. So अलग तरीके भी हैं rather than just one particular way which is tracing the originator. So this is what they are saying, and then they are also saying that scrutiny is a must, कि मतलब कंसल्टेशन होनी चाहिए. देयर शुड बी वाइडर कंसल्टेशन ऑन द रूल्स. गवर्नमेंट प्राइमा फेसी कहती है कि इन्होंने कंसल्टेशन के बाद ये रूल्स लेकर आए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट जब कंसल्टेशन की थी 2018 में, तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या एकेडमिया वगैरह ने सब ने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया था, बोला था कि राइट टू प्राइवेसी वायलेट होगा, प्लीज़ मत इन रूल्स को लेकर आइए. बट गवर्नमेंट ज़बरदस्ती लेकर आ गई और गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हमने तो इन लोगों को कंसल्ट किया था. So this is what they are saying, that what we need to do is we need to amend the antiquated IT Act of 2000. That means आउटडेटेड जो IT Act of 2000 हो गया है, उस चीज़ को अमेंड करना चाहिए और दोबारा से कंसल्टेशन करनी चाहिए, लीगल चेंजेस करने चाहिए, एंड वी शुड इंश्योर दैट एवरीबडी इज टेकन ऑन बोर्ड. सबको साथ लेकर चलो और सबकी सहमति के बाद इस तरीके के IT रूल्स होने चाहिए या IT Act होने चाहिए. दैट इज समथिंग द ऑथर्स आर सेइंग. Now let's move to the next article of the day, which is this recognizing caste-based violence against women. So this is the second article दोस्तों, which says that the violence against women, it is not just gender-specific violence, it is also caste-based violence, which the courts often don't recognize. तो इन्होंने specific examples दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से लेट्स से वायलेंस अगेंस्ट विमेन हो रहा है तो पनिश तो कर रही है उनको, बट ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जुडिशरी रिकग्नाइज नहीं कर रही दैट इट इज अ कास्ट बेस्ड वायलेंस. द सॉर्ट ऑफ ट्रिगर of that violence is caste based rather than just being gender specific or just being some other factor like class etc. So it is saying that by repeatedly setting aside convictions under the Prevention of Atrocities Act of 1989, जिसको SC/ST Act भी बोलते हैं, courts bolster allegations that the law is misused. कोर्ट्स इस चीज को इन्वोक नहीं करे, इस एक्ट को, POA एक्ट को इन्वोक नहीं करते, तो इससे क्या इंप्रेशन जाता है सोसाइटी में कि जो एक्ट है ये मिसयूज हो रहा है. और जो विक्टिम्स हैं, जब उन्होंने लेट्स से कहा कि दिस पर्टिकुलर प्रोविजन शुड बी इन्वोक्ड, दिस एक्ट शुड बी इन्वोक्ड, तो जब कोर्ट इन्वोक नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है कि ऐसा इंप्रेशन जा रहा है सोसाइटी में कि जो विक्टिम्स हैं वो जबरदस्ती मिसयूज कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज विक्टिम बट दे आर नॉट. सो दिस इज समथिंग द authors are saying that should not happen, and the court should ensure that POA Act must be invoked. In fact, this is important for GS2, vulnerable sections of the Indian society, and it is a cross section between gender and caste. So दो vulnerable sections हैं, साथ में आ जाते हैं. So one is women and second is the SC/ST. So वो साथ में overlapping यहाँ पे हो रही है, and this is something which makes it important from GS2 perspective. So यहाँ पे इन्होंने पहले ये बताया किस तरीके से हाथरस में जो ग्रूसम केस हुआ है. So there SC/ST Act should be invoked, लेकिन कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट SC/ST Act या POA Act को इन्वोक नहीं करता, वो पनिशमेंट तो दे देता है
what is due for that particular crime, but without invoking POA Act. ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे दलित women who are like first of all they are SC STs, they are Dalit and they are women, तो उनके अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, कोर्ट रिकग्नाइज कर रहा है वायलेंस को, बट इट इज नॉट रिकग्नाइजिंग देयर कास्ट, एंड दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शुड नॉट हैपन. सो उन्होंने एक पर्टिकुलर एक जजमेंट दिया है विच इज पतन जमाल वाली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. तो ये इन्होंने स्पेसिफिक एक वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट का. प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. आप एग्जाम में लिख सकते हो, GS2 में स्पेसिफिकली लिख सकते हो. अगर आप पर्टिकुलर वर्डिक्ट्स लिखोगे तो ज्यादा इम्प्रेसिव होगा एग्जामिनर के लिए एंड यू विल गेट मोर मार्क्स. सो इन्होंने बोला है कि कोर्ट ने रिकग्नाइज किया कि द वुमेन वाज दलित, शी वाज डिसेबल एंड देयर वाज दिस एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी. सो देयर वाज दिस एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी दैट इज देयर. दैट मीन्स, सो आई विल शो यू, जस्ट लेट मी रब इट. सो इंटरसेक्शनैलिटी मतलब बहुत सारी चीजें कल्मिनेट हो रही हैं. सो द कास्ट भी वहां पे हो रही है, SC ST, जेंडर भी हो रहा है दैट इज विमेन, एंड डिसेबल भी है. सो कई सारी चीजें और ज्यादा उनको वनरेबल बनाती हैं, बट कोर्ट ने POA एक्ट को इन्वोक करने से मना कर दिया. दिस इज द प्रॉब्लम दैट द ऑथर हैज. सो इंटरसेक्शनल अप्रोच में यही बोल रही हैं कि ये जो तीनों चीजें मिलके आ रही हैं, लेट्स से कास्ट है, क्लास है, रिलीजन है, और भी कई सारी चीजें, नॉट जस्ट 3, लेट्स से डिसेबिलिटी, तो ये जो चीजें साथ में मिलकर आ रही हैं तो दे आर मेकिंग दैट पर्सन इवन मोर वनरेबल. सो कोर्ट शुड रिकग्नाइज स्पेसिफिकली दैट द केस इज वन ऑफ POA अगर ऐसा दलित के अगेंस्ट में कोई वायलेंस होती है एंड द परपेट्रेटर ऑल्सो नोज कि दैट पर्सन इज दलित. In that particular case, the burden of proof should not lie on the prosecutors कि उनको ये प्रूव करना पड़े कि that it is necessarily a case of the caste based violence, caste motivated violence. So ये जो POA एक्ट है कोर्ट को इन्वोक करना चाहिए जहाँ पे इनको लगता है कि एक्चुअली कास्ट से मोटिवेटेड है, सो दैट जो हाई एक्विटल रेट्स हैं, सो हाई एक्विटल मतलब ज्यादातर केसेस में जो परपिट्रेटर्स हैं वो एक्विट हो जाते हैं और ये POA एक्ट वहाँ पे इन्वोक नहीं होता. तो उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते इन फ्यूचर. इट इज डेटरेंट टू द फ्यूचर परपिट्रेटर्स ऑफ कास्ट बेस्ड क्राइम. सो दैट वे दिस ऑथर इज सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट है, इनको एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए एंड इट शुड इंश्योर दैट आप पनिशमेंट तो दे रहे हो बट साथ में जो पर्टिकुलर क्लॉज है फॉर द SC ST कम्युनिटी, दिस शुड ऑल्सो बी इन्वोक्ड. Now let's come to the last article which is related to the Palestinian and Israeli conflict that we have, related to the Israel-Palestine conflict that we are witnessing. तो यहाँ पे ये ऑथर बोल रहे हैं that Indian model of coexistence, इंडिया से coexistence का मॉडल सीख सकते हैं. For those of you who want to know the history of Israel-Palestine conflict, please do check out the 26th May wala editorial that we did. I will put in the I button and you can get a good understanding of the origin of this particular Israel-Palestine conflict. यहाँ पे ऑथर ने थोड़ा हटके बोला है. ऑथर ने बोला है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है तो वो ख़त्म नहीं होने वाला अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही, बिकॉज इजराइलीज ऑक्यूपेशन खत्म नहीं करेंगे एंड पैलेस्टीनियन का जो बैकलैश है, जो वायलेंस है, एक सेक्शन पैलेस्टीनियंस जो कर रहे हैं अगेंस्ट इजराइलीज एंड ऑल, सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू एंड. कैसे वो खत्म होगा? वो तब खत्म होगा जब वो इंडियन मॉडल ऑफ को एग्जिस्टेंस से सीखेंगे, जब उनको ये एक्सेप्टेबल होगा कि सब सर्वधर्म संभव है, मतलब सारे जो रिलीजन्स एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं जैसे इंडिया में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 स्टेट सोल्यूशन है, 1 स्टेट सोल्यूशन भी हो सकता है जिसमें इजरायलीज, ज्यूज एंड अरब्स, जिसमें ज्यूज एंड मुस्लिम्स दे कैन कम टुगेदर, दे कैन लिव इन हार्मनी. दैट वुड बी द सोल्यूशन ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट. तो इन्होंने थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोला है. एज आई हैव सेड दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द हिस्ट्री. आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू द territories captured by Israel when it had this 6-day war in 1967, Egypt का Sinai Peninsula and Syria का Golan Heights. So let's see the territories captured by Israel. So you can see after the 1967 war, land occupied by Israel in 1967. तो एक तो Golan Height है, this is still under Israel by the way, and second is Sinai Peninsula. 1967 में
इसराइल ने छीन ली थी इजिप्ट से, बट इजिप्ट ने दोबारा से 1973 में योम किप्पूर वॉर में उसको दोबारा से अपना रिकैप्चर कर लिया, रिट्रीव कर लिया. सो दिस इज अंडर इजिप्ट नाउ एंड दिस इज अंडर इसराइल. So now I hope that you understand your geography of Palestine and Israel and it is clear to you कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें located है. So Golan Height यहाँ पे हो गया, Gaza Strip, West Bank, East Jerusalem and West Jerusalem यहाँ पे, and this is Egypt and these are the bordering countries. So दोस्तों, thank you so much. That was all for the day. If you have any questions, you can let me know and I will ensure that I reply to that. So thank you. Till then, take care. Have a good day. Bye bye.